Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, chapter 5, Nomadic Empire. In this chapter, we will read about the Mongol Empire. It was very vast. It was widespread from Asia to Europe. And we have also discussed about the opportunity of the Mongols. When we will read this paragraph, this chapter, we can easily understand the vastness of the European historian, what they wrote about the Mongols. According to them, the Mongols, they were barbarians, they were herders, they were uncivilized, they were no proper administration. But these are all are not correct. I have discussed all these points in my previous video in the introductory session of this chapter, where I have discussed when the Russian historians started to study about the Mongols, they find out there are so many different points which is given in the different documents. When they studied about the traveler's account, about the local document of the Mongols, and about the European historians, what they wrote about the Mongols, totally different. European explanation is different, and the personal accounts of the Mongols, that was different. This chapter is very इंटरेस्टिंग. इस चैप्टर में आपको कई सारी बातें, एक रहस्य से चीज़ें, भरी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी. किस तरीके से मंगोल अपने को, मंगोलों का एक प्रोमिनेंट लीडर तिमोजिन अपने को रेत ऑफ गॉड कहता है, अपने को मैंडेट करता है कि आई वॉज मैंडेट बाई गॉड टू रूल ऑन यू, आपके ऊपर शासन करने के लिए मुझे भगवान ने भेजा है. और फिर वो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है अपने लोगों के द्वारा, अपने ट्राइबल्स फैमिली, ट्राइबल्स पीपुल के सहयोग से, जो हर्डर्स थे, जो वंडर्स थे, जो नोमैड्स थे, जो पिजेंट्री सोसाइटी को फॉलो करते थे, और उनसे बना करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के द्वारा की जाती है. Let's start this chapter. In the early decades of the 13th century, the great empire of the Euro-Asian continent realized that the danger posed to them by the arrival of the new political power in the steppe of the Central Asia. Genghis Khan had united the Mongol people. Genghis Khan's political vision, however, went to beyond the creation of confederacy of Mongol tribes in the steppe of Central Asia. He had mandate from God to rule the world, even though his own lifetime was spent consolidating his hold over the Mongol tribes, leading the difficulty campaigns into the adjoining area in the North China, Transoxiana, Afghanistan, Eastern Iran, and the Russian steppes. His descendants traveled further afield to fulfill Genghis Khan's vision and create the largest empire the world had ever seen. This is the very important things.
the persons who living their life as a herders, as a unstable people, establish a very vast empire that had ever seen. इतना बड़ा साम्राज्य जिसको कभी पहले देखा नहीं गया था, जिसको मंगोलों ने स्थापित किया 13th सेंचुरी के शुरुआती डिकेड्स में। जो यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्य ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में, जो मिडिल एशिया के स्टेपी प्रदेश में, रीजन्स में एक नई राजनीतिक शक्ति का विकास किया, एक नई राजनीति का अभ्युदय हुआ, जिससे चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित करके स्थापित किया था। पर चंगेज खान की राजनैतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों के एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। इसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। He had a mandate from God to rule the world. यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य से संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, ट्रांसआक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपिस प्रदेश के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में भी था। एक लंबी लड़ाई उसने लड़ी, इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, युद्धों में, वार में, और फिर इस बड़े साम्राज्य की स्थापना की। वो कहता है कि मुझे ईश्वर के द्वारा शासन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। उसके बाद चंगेज खान के वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खान के जो ड्रीम थी, जो स्वप्न था, उसको सार्थक किया और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आफ्टर द Genghis Khan, their descendant also so curious to widespread the boundary of the Mongols or Mongolian Empire. उनके पूर्वजों ने, उनके बाद के सक्सेसर्स ने भी इस बात का ध्यान रखा कि मंगोल एम्पायर की साम्राज्य सीमा और दूर तक फैले, बढ़े। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोंक 1251 to 60 ने फ्रांस के शासक लुई 9th 1226 to 70 को यह चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति है, चंगेज खान, हेवन सन, स्वर्ग पुत्र, जो शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति से रहेगा। तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप को इस पर विश्वास करना चाहिए। हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है, हमारे समुद्र विशाल है, और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर इस विश्वास के साथ आपने हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम जानते हैं इसका क्या कर सकते हैं, और इसका आप भी जानते हैं आप क्या कर, आपका क्या होगा। इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक ए थ्रीट। इट इज एक धमकी थी, एक थ्रीट थी जो चंगेज खान का लड़का, पोता, ग्रैंडसन मोंक दे रहा था लुई 9th को। इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ द गंगेजी खान्स आइडियल्स दैट हिज ग्रैंडसन मोंके
1251-60, warned the French ruler Louis IX, 1226-70, in heaven there is only one eternal sky, one earth, there is only one Lord Gangezi Khan, the Son of Heaven. When by power of the eternal heaven the whole world from the rising of the sun to its setting shall be at one in joy and peace, then it will be made clear what we are going to do. If when you have understood the decree of the eternal heaven, you are unwilling to pay attention and believe it, saying, our country is far away, our mountains are mighty, our sea is vast, and in this confidence you bring an army against us. We know what we can do. He who made easy what was difficult and near what was far off. The eternal heaven knows these were not empty threats. And 1236-41, campaign of Batu, another grandson of Genghis Khan, the devastated the Russian land up to Moscow, seized Poland and Hungary, and campaigned outside Vienna in the 13th century. It did seem that the eternal sky was on the side of the Mongol and many part of the China. The Middle East and Europe saw in Genghis Khan's conquest of the inhabited world the wrath of God, the beginning of the day of the judgment. How did the Mongol create an empire that dwarfed and achievements of the other world conquer Alexander? In pre-industrial age of poor technological communication, what skills were deployed by the Mongols to administer and control such a vast dominion? For someone so self-confidently aware of his moral, divinely dispensed right to rule, how did Genghis Khan related to the diverse social and the religious groups that comprise his dominions? In the making of his imperium, what happened to the plurality? We need to start our discussion, however, with a humbler set of questions to better comprehend and social and the political background of the Mongol and Genghis Khan. Who were the Mongols? Where did they live? Who did they interact with, and how do we know about their social and policy, their society and the politics? These are all questions arise here. फर्स्ट, चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोंक ने फ्रांस के शासक को जब ये धमकी भरा पत्र लिखा, ये धमकी दी कि तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्वर्ग में सिर्फ एक ही स्वर्ग पुत्र है और वो है गंगेजी खान। हमारे साम्राज्य बहुत बड़े हैं, हमारे पर्वत बड़े ऊंचे हैं, हमारे समुद्र बड़े काफ़ी विशाल हैं, तुम्हें ये सोच समझ के हमारे खिलाफ सेना लेके आनी चाहिए और तुम्हें पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये सिर्फ खाली धमकी नहीं थी। इसके बाद चंगेज खान के दूसरे पोते बाटू ने 1236 to 1241 में रूस में एक बड़ा अभियान किया। रूस की भूमि को मॉस्को तक लौट डाला। पोलैंड, हंगरी पर उसने विजय प्राप्त की
वियना के बाहर तक उसने अपना डेरा डाला। 13वीं सेंचुरी तक आते आते लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया, यूरोप ये मानने लगे थे कि चंगेज खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है, रीथ ऑफ गॉड है, और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया, किन टेक्निक का इस्तेमाल किया। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विधिक, सामाजिक और धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा। उसकी राजसत्ता इंपीरियम के विकास में इस बहुविविधता, प्लुरलिटी का क्या हुआ। बहुत सारे वर्ग के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग कैसे उसके राज्य में समाहित हुए। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपना पूरा डिस्कशन, अपनी पूरी चर्चा इन साधारण प्रश्नों के आसपास करके करें कि मंगोल कौन थे, मंगोल कहाँ रहते थे, उनके संबंध में किन के साथ थे, उनके संबंध किन किन लोगों के साथ थे, और उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। अगर इन प्रश्नों के आधार पर हम मंगोलों के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमें स्पष्ट और क्लियर प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमें वहीं ले जाता है, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड कैसी थी, इन चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं इस पैराग्राफ पे। लेट अस स्टार्ट दिस पैराग्राफ, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। What I have discussed here, I want to inform you that if you will focus that question, that who are Mongols, where did they live, who did they interact with, and how do we know about the society and politics of the Mongols. If you focus that question, we can easily understand the history of Mongol. It is so easy to understand about them. So let's start your next topic, social and political background. The Mongols were a diverse body of the people linked by the similarities of the language to the Tatars, Khitan and Manchus to the east. And Turkey tribes to the west. Some of the Mongols were pastoralists, while others were hunter-gatherers. The pastoralists tend herds, sheep, to lesser extent cattle, goats and camels. The nomadized in the steppes of Central Asia in a tract of land in the area of the modern state of Mongolia. This was and is still the majestic landscape with the wide horizons rolling plain arranged by snow-capped Altai mountain to the west, arid Gobi desert in south, and drained by the Onon and Selenga river and the myriad spring from the melting snow of the hill in the north and the west, luxuriant grasses of the peasants and considerable small game were available in a good season. The hunter-gatherer resided
to the north of the pastoralists in the Siberian forest. They were humbler body of people than the pastoralists, making a living from trade in the fur of animal trapped in summer months. There were extremes to brief dry summer. Agriculture was possible in the pastoral region during short part of the year, but Mongols, unlike some of the Turkeys further west, did not take up farming, neither the pastoral nor settlements, and as a result, a region passes to cities. The Mongols lived in tent jars and traveled with their herds from their winter to summer pasture land. Here one word, jars. Please noted it. जर क्या होते थे? आइए यहाँ तक पहले बात करते हैं। कहते हैं मंगोलों के विविध जन समुदाय का एक निकाय था। छोटे छोटे वर्गों में मंगोल बटे हुए थे और उनका एक अपना संस्था था। ये लोग पूरब में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज़ के आधार पर परस्पर एक दूसरे से इंटरेक्ट थे, जुड़े हुए थे, अंतर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे, पास्टलिस्ट थे, कुछ शिकारी संग्राहक थे, हंटर एंड गैदरर्स थे। पशुपालक जो पास्टलिस्ट थे उनके पास घोड़े, भेड़ और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका जो घुमक्कड़ी पेशा था वो मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट और मिडिल एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो कि आज आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और एक सुंदर मैदानों से घिरा हुआ था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्टाई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थीं। दक्षिणी भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल था। गोबी मरुस्थल से निकले सैकड़ों झरनों से पानी सिंचित होती थी। बर्फीली पहाड़ गोबी के मरुस्थल उनके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशु चारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान स्टेपी रीजन्स थे और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतु में उपलब्ध हो जाते थे। जो हंटर एंड गैदर सोसाइटी के लोग थे वो शिकार करके पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर साइबेरियाई जो वनों में रहते थे वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक करीब होते थे, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ हंटर एंड गैदरर पे था। ये पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक करीब होते थे और गर्मी के महीने में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे, जीवन चलाते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम में, जाड़े के मौसम में, जाड़े का मौसम काफ़ी कठोर होता था, काफ़ी ठंडा होता था और ऐसे मौसम में अल्पकालिक शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। इसके बाद छोटे समय के लिए गर्मी का महीना आता था और ऐसे समय में ये घुमक्कड़ स्वभाव के लोग, नोमैडिक पीपुल, साल के सीमित अवधियों में ही कृषि इनके लिए संभव थी, क्योंकि अधिकतर नोमैडिक पीपुल खेती करना पसंद नहीं करते थे। कृषि कार्य को उन्होंने अपनाया भी नहीं, न ही पशुपालकों ने और न ही शिकारी संग्राहक जो हंटर एंड गैदर सोसाइटी के लोग थे उन लोगों ने। रिजल्ट, इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं बन पाया। मंगोल जिन तंबुओं में रहते थे उन्हें जर कहा गया और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल में ग्रीष्मकालीन घास के मैदानों में इनका मूवमेंट हमेशा होता रहता था। तो यहाँ पे आपने जर एक नया वर्ड पढ़ा है। जर क्या था? जर उनके जो टेंट थे जिसमें वो रहते थे उसको जर कहते थे।
कहता है कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है एथनिक ग्रुप्स, एथनिक लैंग्वेजेस, ties united the Mongol people, but the scarce resources meant that their society was divided into the patrilineal lineage. The richer family were larger possessed more animal and pastoral land. They therefore had a many followed and were more influential in the local politics. Periodic natural calamities, either usually rash, could winter when game and stored provisions ran out, or drought, which pressed the grassland, would force family to forge further field, leading to conflict over pasture land and the predatory raids in the search of the livestock. Groups of the families would occasionally ally for offensive and the defensive purpose around richer and more powerful lineages. But barring the few exceptions, these confederacies were usually small and short-lived. The size of Gangezi Khan's confederations of Mongol and Turkish tribes was perhaps matched in size only by the which had been stitched together in 5th century by Attila 543. जो ये एथनिक ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स उनके लैंग्वेज भाषा के संबंधों में मंगोलों को परस्पर जोड़ के रखा, अपने फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे, अपने लैंग्वेज के आधार पे ये एक साथ जुड़े रहे। पर जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन या संसाधनों में जो कमी होने के कारण उनका समाज अनेक जो पैटर्नली डायनेस्टीज थी उसमें बट गया। पिता के नाम पे कई सारे राजवंशों की स्थापना हो गई। राजवंश न कहें बल्कि कहें पिता के नाम पे वंशों की स्थापना हो गई। धनी परिवार भी बड़े होते थे, जो रिचर फैमिली थी वो उनका आकार बड़ा होता था, उनके पास अधिक संख्या में पशु और खेती वो चारागाह के लिए भूमि होती थी। इस कारण अनेक अनुयायी भी इनमें शामिल होते थे, बड़े फैमिली के लोगों में। इनके पास बड़े फैमिली के जो मंगोल थे, जिन मंगोलों की फैमिली बड़ी होती थी उनके पास बड़ा दास समूह था, स्लेव्स, उनके पास बड़े एनिमल्स थे, जानवर्स थे, और उनका एक अपना अच्छा प्रभाव था, राजनीतिक पकड़ थी। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर, घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाह की खोज में भटकना पड़ता था और इस दौरान उन्हें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त होने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्रायः बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे। मंगोलों और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। चंगेज खान ने एक बड़ा काम किया। उसने ये छोटे छोटे जो संघ थे, जो छोटे छोटे एसोसिएशंस थे उनके कम्युनिटी के, उनको जोड़ा। तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान ने एक बहुत बड़ा परिसंघ बनाया जो अट्टिला के बराबर था। तो इन चीज़ों को हमने समझा और हमने इनको देखा। इन चीज़ों में हम लोगों ने मंगोलों की साइज और लोकेशंस के बारे में देखी। हमने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे मंगोल अपना विकास कर रहे थे, एथनिक ग्रुप्स को मिलाकर बड़े साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। उनकी राजनीतिक, सामाजिक,
आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। किस तरीके से वे इस बड़े साम्राज्य को स्थापित करेंगे, इस पैराग्राफ में हम आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।